Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door and I hope you all are well and you like my all videos. और हमने केस स्टडी भी स्टार्ट कर दी है इस चैप्टर की. तो चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग एंड क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़. ठीक है, 2 केस स्टडी वी हैव ऑलरेडी डन and now this is the next case study and I hope you understand all the case study and the concept which is explained by me. And as a request, if you have any suggestion for me how to improve my videos or how I'll convey myself to you so that you get a better understanding. ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई भी suggestion है then do comment below and I will definitely try to use it right in the best possible manner. So let's start with the third case study. Kinika, Tanish and Rohit were friends from the college days and now they are doing different kind of the business. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange note on the customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concern, etc. In one of the meeting, Ginika drew the attention of the Tanish and Rohit towards the exploitation of the consumers. She told them that most of the sellers were exploiting the consumers in the various ways. They were not paying attention towards the social, ethical, ecological aspect of the marketing, whereas she was not doing so. Tanish told that they were under the pressure to satisfy the customer, but stated that the customer would not buy enough unless they are adequately convinced and more motivated for the same. Rohit stated that the company can't achieve its objective without understanding the needs of the customer. It is the duty of the businessman to keep customer satisfaction in the mind because business is run by the sources made available to them by the society. And he further stated that he himself was taking into the consideration the need of the customer. TKNS will identify the various type of the thinking that guided Ginika, Tanish and Rohit in the marketing efforts of their business, right? And also state one or more feature of the various type of the research, various type of the thinking identified that is not given in the upper para. क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देख लीजिए CBSE 2017 में आया भी है. इट्स मीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अंडरस्टूड बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट? तो क्या बोल रहा है, इसके अंदर 3 दोस्त हैं जो कॉलेज के दोस्त हैं और वो आपस में अक्सर मिलते रहते हैं. तो क्या होता है, एक दिन जो गिनी का एक लड़की है वो बोलती है कि आजकल ना ये सेलर्स बहुत गंदे हैं, ये कस्टमर को बहुत परेशान करते हैं. ठीक है ना, उनको मतलब दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग. और वेयर शी वॉज नॉट डूइंग सो. ठीक है, उसके दिन उन्होंने बोला जो तनिष था, मतलब वो देखो अभी क्या है, सबने तीनों ने ना अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रखे हैं. आपको उसके अकॉर्डिंग बताना कि कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट इधर यूज़ हो रहा है, राइट? तो अभी क्या है, जो गिनिका है उसने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में बोला और आईएनसी सेलर बोला. अभी क्या बोला है, तनिष कह रहा है कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना, जो हमारे सेलर्स होते हैं वो भी अंडर द प्रेशर होते हैं कि वो सेटिस्फाई कस्टमर को मतलब सेटिस्फाई कर सकें. और देखो सिंपल सी बात है, जब तक एक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तब तक वो नहीं खरीदता. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक्सप्लोट कर रहा है, क्यों खरीद रहा है, मत खरीदे, ऐसा वो बोलना चाहता है. मैं नहीं बोल रही. ठीक है, कि मतलब वो बोल रहा है कि वो कन्विंस हो रहा है तभी तो वो खरीद रहा है. और अब बाद में वो डिससेटिस्फाई हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम उसको मोटिवेट करें, कन्विंस करें, कुछ तो उसको अच्छा लगा ना, तो एक्सप्लोटेशन कहाँ से हुई. और रोहित ने फिर बोला कि देखो भाई ऐसा है कि जो कंपनी का ना अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो नहीं रहा. तो इस वजह से क्या है कि मतलब उनका होगा नहीं जब तक वो कंज्यूमर के नीड को समझेंगे नहीं. ठीक है, और ये ड्यूटी होती है कस्टमर की, सॉरी बिजनेस की, कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उनके माइंड को समझे, उनकी देखभाल करें, उनको वैल्यू दे, बिकॉज जो भी रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं ना वो सोसाइटी का है. ठीक है ना, और क्योंकि वो मतलब कस्टमर की साइड है ना. तो आपको अलग अलग पॉइंट बताना है. तो जैसे गिनिका ने ना तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट बोला, बिकॉज देखिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है ऑल कंसेप्ट बहुत अच्छे से. एक एक कंसेप्ट हमने एक्सप्लेनेशन के साथ समझे हैं. ठीक है, तो आप उस वीडियो को पहले रेफ़र कीजिएगा, है ना, और उसके बाद आप ये केस स्टडी लगाइएगा, बहुत ईजी है ना. इसमें क्या बोला है, गिनिका जो है ना उसने कस्टमर की एक्सप्लोटेशन की बात करा है. एक सोसाइटल मुद्दा है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक अ सिंपल कंसेप्ट, इट्स अ सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट. मतलब ये मार्केटिंग का है, मतलब क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है. तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्योंकि मोर ऑफ दी सोसाइटी का कंसर्न भी हो गया. अगला तनिष तो सेलिंग की बात करा है कि भाई हमारे कस्टमर अच्छा, हमारे जो सेलर्स है वो अच्छे हैं, वो क्या करें जब तुम खरीद के जा रहे हो. तो सेलिंग कंसेप्ट है. रोहित का मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है उनका, कि देखो कि लोगों को सेटिस्फाई करना,
ये बिज़नेस का नीड है, ठीक है। एक्सप्लोटेशन तो बाद में है, तो ऐसे करके आपको लिखना। और इस केस स्टडी के लिए भी और प्रीवियस जो केस स्टडी नंबर 2 हमने करा था, दोनों के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी टाइम ले रखा है, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं मैंशन है, पर आपको एक्सप्लेनेशन लिख कर आनी है, राइट। यू हैव टू मैंशन द एक्सप्लेनेशन वेरी वेल, ताकि यू गॉट द enough marks to score better, right? And if you have any doubt, then do comment below. And I hope you like my videos, and do like, share, subscribe. Okay, bye guys, take care, thank you.